Hello friends, good morning to all of you. Today I will discuss about some important questions of economics and marketing which will come in your DFCCL exam, that is a dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, whose weightage is around 12 to 15 marks. Okay, let us start from the first question. In which type of economy price is determined by the demand and supply? In which type of economic price is determined by demand and supply? First option socialist, second option capitalist, then third option monopoly, D all of these. Socialist economic, in this type of economic all the economic activities is controlled by the government. फर्स्ट केस में all the economic is controlled by government. Then in capitalist economic all the economic activities are controlled by the private individual. So second option is our correct answer होगा. Then come to the next question. In which type of economic private sector control all economic activities? All the economic activities are controlled by private sector. In which type of economic? In socialist economic all the economic activities are controlled by the government. In capitalist economic all the economic activities are controlled by private sector. So in second question option B is also the correct answer होगा. Then question number 3, which sector is the largest employer in India? Which sector is the largest employer in India? All of you know that there are three types of sector: primary sector, secondary sector, tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज लाइक एक्सप्लोरिंग ऑफ मिनरल, दीज आर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जो सब चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मेटल सब, इसको यूज करके हम जो सब प्रोडक्ट सब क्या होता है मैन्युफैक्चर होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? एंटरटेनमेंट, रिटेल, होलसेल प्राइस, दीज आर कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर. सो which sector is the largest employer in India? That is primary sector. Agriculture provide almost 60% of employment to India. So most of the people are engaged with agriculture activities in primary sector. So option A is our correct answer. Then let us see 4 number question. Question number 4. Question number 4. Who is advocated the पूरा model to eradicate the rural poverty? रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए पूरा मॉडल कौन दिया था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी ऑप्शन AM खुसरो और डी ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. कौन पूरा मॉडल दिया था रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिए थे. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Who released the multi-dimensional poverty index? Who released the multi-dimensional poverty index? ऑप्शन ए में क्या है? वर्ल्ड बैंक, सेकंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थर्ड में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और थर्ड में एशियन डेवलपमेंट बैंक. हु रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? दैट इज UNDP. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हुज हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6. FDI refers to which term? FDI refers to foreign direct investment. That is in option
number C. Foreign direct investment is our correct answer. Then question number 7. Question number 7. When the National Stock Exchange of India established? When the National Stock Exchange of India established? In 1992 में National Stock Exchange of India established. Then question number 8. Question number 8. Who among the following is most benefited from the inflation? इन्फ्लेशन जब हो जाता है इसमें कौन सबसे बेनिफिटेड होता है? इन्फ्लेशन मतलब गुड्स और सर्विस का प्राइस क्या हो इंक्रीज हो जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ और सर्विस का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज जब हो जाएगा तब कौन सबसे बेनिफिटेड होता है? देखो, गवर्नमेंट, पेंशनर, क्रेडिटर्स, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और डिबेटर्स। डिबेटर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होता है जब इन्फ्लेशन हो जाता है, तब डिबेटर ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is not a mode of foreign capital inflow to India? Question number 9. Which of the following is not a mode of foreign capital inflow to India? फॉरेन से जो सब मनी आता है इंडिया को, वो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो मनी आता है इंडिया को। देन एफपीआई, देन एनआरआई अकाउंट से तो फॉरेन से इंडिया को मनी आता है। ऑप्शन नंबर डी, चिट फंड से मनी नहीं आता है इंडिया को, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10. Which is the regulatory authority for mutual fund and stock market? स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसीबीआई दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज। Which one is our correct answer? That is SCBI, that is Security Exchange Board of India, regulate all the mutual fund and stock market. Then question number 11. The headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank is located at? The headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank, that is Asian इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, वो कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2013 में हुआ था। 2013 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2013 में, ठीक है। AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. Then question number 12. Government imposes tax to? गवर्नमेंट किसके लिए वो टैक्स इम्पोज करता है, कौन सा चीज़ के लिए? टू चेक द accumulation of wealth among rich, to check the accumulation of wealth among rich, or to run the machinery of state, और uplift weaker section, और none of the above. गवर्नमेंट टैक्स क्यों इम्पोज करता है? टू रन द मशीनरी ऑफ स्टेट मतलब कंट्री का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेवलपमेंट वर्क होता है, इसको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लगाना पड़ता है? टैक्स। वो टैक्स लगाता है क्योंकि हमारा कंट्री का जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, इसको अच्छे से कर पाए। देन क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following committee was established to double the farmer income by 2022?
which of the following economic activity, which of the following committee was established to double the farmer income by 2022? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रंगराजन कमेटी, नचिकेत कमेटी, देन अशोक दलवाई कमेटी, नॉन ऑफ द एबव। इसमें कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, अशोक दलवाई कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डबल ऑफ फार्मर इनकम बाय 2022, देन ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 4, who of the following introduced the concept of human development index? इसमें कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक। वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक, वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय व्हिच स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which provide the first human development index report in March 2002। first Madhya Pradesh is the first state to provide to human development index report। then question number 15, economic planning is in यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इकोनॉमिक जो प्लानिंग होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, जो सब होता है, वो कौन सा लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट में आता है, और स्टेट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट, और बोथ। कंकरेंट मतलब यूनियन एंड स्टेट बोथ में आता है। वो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, बोथ में आता है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, which sector of Indian economic contributes maximum to the gross national product? Which sector contributes maximum gross national product? That is primary sector और secondary sector और tertiary sector और public sector। कौन सा सेक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए, हमारा टर्शियरी सेक्टर जो होता है, एंटरटेनमेंट, रिटेल, वो सब जो आता है, वो मैक्सिमम कंट्री को, इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 17, which sector is the mainstay of Indian economy? Manufacturing, business, public sector, agriculture. All of you know that agriculture is the mainstay of Indian economy। mainstay of Indian economy क्या है, हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन व्हिच ईयर? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1952। 1952 में सेटअप हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन अभी वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं है, वो अभी नहीं है। इसके बदले में क्या आया है, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, जो फंक्शनल हुआ है कब से ना, 1 जनवरी 2015 से वो वर्क कर रहा है नीति आयोग। हु इज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग का फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है, वो भी एक क्वेश्चन है। अरविंद पानगरिया is the first vice chairman of Niti Aayog। Then question number 9,
Which is the best measure of economic growth of a country? Which is the best measure of economic growth of a country? एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वो किस में पता चलता है? कौन सा वो इसका मेजरमेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, is the best measure of economic growth of a country. Then question number 20, who proposed the first budget of Republic India in 1950? Who proposed the first budget of Republic India in 1950? That is John Mathai first, who represent budget in a Republic India, that is in 1950. देन वो जो ऑप्शन बी में है क्या है? सनमुखन चेती. सनमुखन चेती इज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया जब क्वेश्चन आएगा तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, सनमुखन चेती. सबसे छोटा बजट कौन रिप्रेजेंट किया था? सबसे छोटा मिनी बजट फर्स्ट मिनी बजट वाज रिप्रेजेंटेड बाय टीटी कृष्णमाचारी. ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हो सकता है. फर्स्ट में हु प्रपोज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया इन 1950, दैट इज जॉन मथाई. जब इंडिपेंडेंट इंडिया पूछेगा तो होगा सनमुखन चेती होगा. जब मिनी बजट पूछेगा तो होगा टी कृष्णमाचारी होगा. ओके, थैंक यू.